हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। Start. By way of this petition, the petitioner seeks a writ of certiorari to quash impugned award dated 21/7/2014 made by the presiding officer Industrial Tribunal cum Labour Court 2nd, Gurgaon, whereby the reference has been answered against the petitioner by holding that he was not a workman within the meaning of section 2 in bracket s bracket out of the Industrial Disputes Act 1947 in bracket for short the act bracket out, and therefore the reference was not maintainable full stop para. Whether the petitioner is a workman is a question which falls for consideration full stop para. A few facts may be noticed full stop. The petitioner was appointed as head guard on temporary basis on a consolidated salary slash stipend of rupees 1400 per month by appointment order dated 12/6/1995 full stop. In due course, he was promoted as inspector full stop. The petitioner says that in spite of such promotion, he continued to perform the same duties which he was performing as head guard full stop. His services were put to an end on 7/4/2010 without complying with the provisions of section 25F of the Industrial Disputes Act 1947 full stop. He raised a dispute by serving demand notice dated 21/7/2010 on the management and copies to the labor authorities full stop. Upon failure of conciliation proceedings, the dispute was referred to the Industrial Tribunal cum Labour Court 2nd, Gurgaon for adjudication full stop. Pleadings were completed and evidence was led by the respective parties full stop on a consideration of material on record. The petitioner has been non-suited on a finding that he was performing supervisory duties full stop. The Labour Court has recorded in para 13 of the award while referring to the testimony of the petitioner that in the company hierarchy, a supervisor supervises the work of security guard, and in turn, work of the supervisor is supervised by the inspectors of his area of deployment full stop. That may be so, but the question still remains whether an inspector having regard to the duties and responsibilities qualifies as a workman on the evidence adduced by the parties full stop para. The Labour Court referred to the definition of workman in section 2 in bracket s bracket out of the act to observe that a person is not a workman who, being employed in a supervisory capacity, draws wages exceeding 10,000 rupees per mensum or exercises either by the nature of the duties attached to the office or by reason of the powers vested in him
functions mainly of a managerial nature, full stop. To reach this conclusion, the labor court drew strength from the decision in of the Supreme Court in Mukund Limited versus Kukand Staff and Officers Association 2004 in bracket 10 bracket out FLR 219 full stop para. The burden to prove the petitioner was not a workman was placed on the management, as the petitioner had asserted in the demand notice and in his pleadings that he was a workman, full stop. The sole witness of the management is RW1 Sandeep Srivastav, senior manager, full stop. No other documentary or oral evidence was produced by the management, full stop, over. तो फ्रेंड्स ये 90 या 90 के आसपास की स्पीड का हो गया है, 93 या 90 ऐसे ही कुछ है, ठीक है। तो इसमें कुछ ब्रैकेट वगैरह आ जाते हैं ना, तो स्पीड फ्लक्चुएट कर जाती है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट को तो काउंट किया नहीं जाता है, और कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कुछ कि ब्रैकेट किया है कि नहीं किया है, लेकिन उससे थोड़ा स्पीड में दिक्कत आती है एग्जामिनर में भी, और नॉर्मल डिक्टेशन हम देंगे या कोई भी देगा बंदा उसके भी, ठीक है। तो इसमें कुछ नाम वगैरह आए हुए हैं, इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। गुड़गांव, गुड़गांव देखिए बनेगा गे आर की, गे में आर का हुक लगाइए और गे की डबलिंग करके एन का हुक लगा दीजिए ऑन द लाइन, मतलब गे आर केयर बनाते हैं, केयर की डबलिंग कर दीजिए और फिर एक एन का हुक लगा दीजिए। एक तरीका ये है गुड़गांव का, ठीक है। जो भी ज़रूरी वॉवल्स लगा सकें इसको लगा दीजिए, हमने सिर्फ आउटलाइन आपको बताई है, ओके। एक तरीका ये है, थोड़ी लॉन्ग आउटलाइन हो जाएगी, थ्रो द लाइन गे बनाइए, अपवर्ड आर जाएगा, फिर गे बना के एन बना, एन का हुक। ये अटपटी है, लंबी है, इसलिए हम सजेस्ट नहीं करेंगे। गुड़गांव जो बताया है हमने, बस उसको डबल डैश लगा दीजिएगा तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बीच में हम एक किसी जगह पे कुछ लड़खड़ा से गए थे बोलते समय, याद नहीं आ रहा है क्या है वो, तो चलिए ठीक है। अच्छा, एक लेड होता है, एक लेड होता है LAID, और एक लेड होता है। तो जहाँ पे एविडेंस की बात होती है वहाँ पे LED लेड होता है, ठीक है। ये कॉमन सी चीज़ है, इसको नोटिस कीजिएगा आप लोग भी, ठीक है। जहाँ पे एविडेंस की बात होगी वहाँ पे LED का यूज़ होगा, ना कि LAID का होगा, ठीक है। तो और कौन सा है, गुड़गांव हो गया, और मुकंद और कुकंद आया इसमें, ठीक है। कैसे बनेगा, ऑन द लाइन M बनाइए और कैन नॉट को जोड़ दीजिए, ठीक है। कैन नॉट का ग्रामलॉग है ना, वो मुकंद हो गया। तो अब मुकुंद और मुकंद में कैसे डिफरेंस करेंगे, कैन नॉट के आफ्टर में दैट की वॉवल, मतलब फर्स्ट प्लेस में आफ्टर में एक वॉवल लगाइए दैट की, ठीक है ना। दैट पेन इज़ नॉट मच गुड, तो दैट की फर्स्ट प्लेस की वॉवल आफ्टर में लगेगी, उससे हो जाएगा कंद, मुकंद। ऊ की वॉवल लगाइए चाहे ना लगाइए, मकंद या मुकुंद होगा, मकंद या मुकंद ही होगा, क्योंकि हमने आपको आफ्टर में वॉवल लगा दी, तो ऊ की वॉवल लगाना ज़रूरी नहीं होगा। तो ये हो गया मकंद, मुकंद, मुकंद, क्योंकि नाम आएगा मैटर में तो आपको याद रहेगा कि अजीब सा था, मुकंद होगा, ठीक है। तो ये मुकंद हो गया। और कुकंद कैसे होगा, कुकंद के लिए पूरा ही बनेगा, क्योंकि इसको आप बना नहीं सकते हाफ ऑफ करके, ठीक है। कुकंद के लिए के की डबलिंग करके एन और डी बनाइए, पूरा एन का स्ट्रोक और डी, कुकंद, ठीक है। डी थ्रो द लाइन जाएगा, ठीक। तो ये हो गया मकंद और कुकंद। और समीर श्रीवास्तव, संदीप श्रीवास्तव है ना, संदीप जो है पूरा बनेगा, सर्किल एन, एन का सर्किल, एन का स्ट्रोक, डी और पी, और पी में ई की वॉवल बिफोर में, ठीक है। तो ये संदीप हो गया, ये पूरा ही बनेगा, क्योंकि इसमें कुछ हाफ हाफ नहीं कर सकते हैं आप। कर भी सकते हैं, आउटलाइन तो अपने मन मुताबिक बनती है, जो भी कर सकें आप कर लीजिए, पर हमारी तरफ से तो रेलेवेंट नहीं होगी, पूरा ही बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। श्रीवास्तव के लिए क्या करिए कि SHR श्योर बनाते हैं ना, थ्रो द लाइन ग्रामलॉग, बस श्योर को V से काट दीजिए, वो श्रीवास्तव हो जाएगा, ठीक है। और ये तो हो गया आपका
आउटलाइन, अच्छा, कमेंट में एक आउटलाइन थी सरश्योरारी की। इसको देखिए, अगर पढ़ा जाएगा तो सरश्योरारी पढ़ा जाएगा, लेकिन इसको नॉर्मल चालू लैंग्वेज में सरसरारी पढ़ते हैं, ठीक है। तो सरसरारी कैसे बनता है हमने लिख के दिया था बताकर, लेकिन शायद समझ में आया हो या ना आया हो, तो इसको हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ऑन द लाइन सर्किल अपवर्ड आर जाएगा, ठीक है, सर्किल बना के अपवर्ड आर, फिर एक सर्किल और फिर एक अपवर्ड आर, और आर के आफ्टर में ई की वॉवल, ठीक है, री के लिए ई की वॉवल लगा दीजिएगा। अब इसमें यह भी आप लोग दिमाग लगा सकते हो कि हमने सर्किल बना के आर बना के एक सर्किल बना के आर बनाया फिर से, तो बीच वाला जो सर्किल है सेकंड सर्किल वो आप बड़ा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्पीड में आउटलाइन बनाने की वजह से बड़े सर्किल और छोटे सर्किल में डिफरेंशिएशन कर पाना मुश्किल होता है, इसीलिए ये आउटलाइन अगर आप करते हो तो आपको ये सरसरारी के अलावा इसको आप कुछ पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है। और रही बात सरसरारी, रारी डबल आर आ रहा है ना, तो ये वाला नियम ना लगाइएगा इसमें, क्योंकि लंबी आउटलाइन बनाने से अच्छा है छोटी आउटलाइन में आप इसको पढ़ लें। अगर इसको नहीं, अगर इसमें रूल फॉलो नहीं भी करेंगे तो भी आप इसको सरसरी ही पढ़ेंगे, सरसरी। तो सरसरी नाम से कोई वर्ड तो होता नहीं है, तो आप ऑटोमेटिक सरसरारी तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो मतलब आउटलाइन इसीलिए होती है कि आप जो वर्ड है उस तक पहुंच सकें, सिर्फ यही इशारे आपको बनाने होते हैं। तो ये हो गया। और तो मुकंद हो गया, कुकंद हो गया, ठीक है। चलिए फिर, और कुछ अगर होता है तो कमेंट्स हमें बताइएगा आप, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम अब डिस्क्रिपेंसी लिस्ट तो आ गई है, तो अब जाहिर सी बात है एग्ज़ाम की डेट भी आ जाएगी जल्दी, ठीक है, 15-20 दिन बाद हो सकता है आ जाए, 15 तारीख के बाद, ठीक। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। मिस्टेक वगैरह जिसकी कमेंट में एक हैं सब्सक्राइबर सुमित जी, बहुत बढ़िया आपकी मिस्टेक आई है 4, बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही करते रहिए। और शायद बाकी लोग थोड़ा बच रहे हैं मिस्टेक बताने में, कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा। आप कंपटीशन खुद से ही करो, अपने आसपास के लोगों के साथ करो, लेकिन अच्छे से करो, ठीक है, ताकि उसका असर आपको आपके लिखने में दिखाई दे, मिस्टेक्स में आए। ओके, तो चलिए फिर फ्रेंड्स, हो चुका है आज का सेशन कंप्लीट। और कुछ अगर छूट जाता है या फिर कोई वर्ड हम नहीं बता पा रहे हैं या भूल गए हैं, तो हमें आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको अगले दिन ज़रूर बताएंगे, डिस्कस करेंगे, मैसेज भी करेंगे, हर तरीके से आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि दिमाग में आपके घुस जाए, धंस जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले डिक्टेशन में।